نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بجلی کے بلوں کے بارے میں، جس کی بھاری بھرکم اضافے کے خلاف عوامی احتجاج کے پیش نظر گجرانوالہ میں کیپکو ہیڈ کوارٹر کے باہر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی محمد ندیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی شہری بجلی کے اضافی بلوں کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں اور گزشتہ 2 روز سے شہری اس سلسلہ میں احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 روز قبل بھی گیپکو آفس کے باہر شہریوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر اکٹھے ہو کر احتجاج کیا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ شہریوں کے احتجاج کے پیش نظر یہاں پر گیپکو آفس کے باہر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ بھی بجلی کے بھاری بھرکم بل انہوں نے پے کیے، اپنے زیورات وغیرہ بیچ کر ان بلوں کو پے کیا گیا، اور اب بھی دوبارہ انہیں 25 سے 30 ہزار کے بل آئے ہیں جو ان کی بساط سے باہر ہیں، وہ جمع نہیں کروا سکتے، اور اس سلسلہ میں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے جو حکومت ہے فوری اقدامات کرے۔ شکر گڑھ میں بجلی کے بلوں پر بے جا ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف سرحدی علاقوں کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ بیلا گجرات سنیاٹی روڈ پر ٹائر جلا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ سابق بار صدر چودھری زین العابدین ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ سرکاری افسران، اشرافیہ اور سیاستدانوں کی عیاشیوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم بل جمع نہیں کروائیں گے، وابڈا کے خلاف وکلا ہر فورم پر لڑیں گے۔ تلمبہ میں بھی بجلی کے بلوں میں ٹیکس کے خلاف انجمن تاجران اور شہری وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا اعظم خان سے۔ جی رانا، آگاہ کیجیے گا۔ الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ جو تلمبہ میں پورے پاکستان میں بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ میٹرو ون نیوز کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں تلمبہ کی عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت میں ہر دور کے اندر غریب عوام کی آواز بنتے ہیں۔ اعظم بھائی، آپ کے سامنے جو صورتحال ہے، ہمارا تلمبہ شہر ایک قصبہ شہر ہے۔ اس ٹائم مہنگائی اور بجلی کے بلوں نے ہر انسان کو پریشانی کے اندر کیا ہوا ہے۔ ہر انسان پریشان ہے، اس کہ بجلی کے ٹیکس اتنے لگ چکے ہیں کہ غریب آدمی ہو چاہے امیر آدمی ہو وہ پے نہیں کر سکتا۔ ایک تو مہنگائی نے انسان کو توڑ رکھا تھا، یہ الٹا کہ بجلی کے بل ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے آگے اور زیادہ پریشانی بڑھ گیا۔ میں تو صرف ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں اپنے حکومت عمران سے کہ آپ مہربانی کر کے آپ بجلی کے ٹیکس کو یہ ختم کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، انجمن تاجران کے صدر کے امیدوار منظور فوجی ڈوگر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے انہی سے بھی جانتے ہیں کہ یہ تلمبہ کی عوام کو اور تلمبہ کی تاجر برادری کو کیا میسیج ہے۔ جی فوجی صاحب، جو تلمبہ میں زیادہ بل آئے ہیں پورے پاکستان میں ہی آئے ہیں، جو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ IMF سے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں حکومتوں نے، یہ اسی کا صلہ ہے۔ اب یہ کتنا ہمیں ریلیف دیتے ہیں، یہ پیسہ پھر بھی IMF کو ہم نے دینا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ریلوے کا نظام تھا نا، اس سے انگریز جو ہے اس سے فوج کو تنخواہ دیتا تھا، لیکن اس سے میں پروفٹ کی بجائے ہم بیک جا رہے ہیں۔ اس میں لمبی بات ہے، یہ IMF سے جو معاہدے کیے اسی کا رزلٹ ہے۔ باقی جہاں تک جو یہ بل آئے ہیں بجلی کے تلمبہ میں، اس کے حوالے سے اب آپ کام کو اعلیٰ حکام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ یہی ہے کہ یہ مہربانی کریں، جو غریب لوگ ہیں نہیں دے سکتے ان پہ شفقت کریں، اور جو ہے نا میٹر نہ کاٹیں، اس حد تک نہ جائیں۔ میرپور خاص انجمن تاجران چیمبر آف کامرس نے مہنگائی بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف مارکیٹ چوک پر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ بلوں کو آگ لگا دی۔ تاجروں کی جانب سے ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف 31 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں بے جا لگنے والے ٹیکسوں کے خلاف انجمن تاجران چیمبر آف کامرس علماء وکلاء نے مارکیٹ چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام مشترکہ پارٹیوں نے پاکستان کی عوام کو اسی IMF کا غلام بنا دیا ہے اور اپنی ذاتی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں ناجائز 1 درجن سے زائد ٹیکس عائد کر دیا ہے جو عوام پر بجلی بند کر گرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں عوام مہنگائی بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں نے احتجاجی دھرنے میں بجلی کے بلوں کو بھی نظر آتش کیا اور میرپور خاص شہر میں اس ظالمانہ بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کے خلاف شہر بھر میں 31 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا۔ صادق آباد میں جہاں تندرست
आदमी बिजली के महंगे यूनिट्स और हुकूमत के फजूल टैक्सों से परेशान हैं। इसी चक्की में पिसने वाली एक माजूर नाबीना शख्स हाफिज गुलाम मुर्तज़ा से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे अतीक गुराया। जी अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद, जहाँ पर एक मजदूर आदमी जो आंखों से भी नबीना है और ये हुकूमत की तरफ से आए रोज़ बिजली के बम जो तंदुरुस्त आदमी के ऊपर गिर रहे थे, उसके साथ साथ एक मजदूर आदमी जो नबीना आदमी है, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा है, अपने बच्चों को जो खाना बड़ी मुश्किल से खिला रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं महीने में अगर दोस्तों की मदद से या कुछ अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ तो मेरी महीने की इनकम है टोटल वो 10 से 15 हज़ार, और 10 से 15 हज़ार उसको अब बिजली का बिल आना शुरू हो गया है। तो उसने हुकूमत वक़्त से ये अपील की है कि ये जो फ़ारौन बने बैठे हैं, ये आए रोज़ फजूल टैक्स और बिजली के जो कीमतें हैं आए रोज़ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। उसी चक्की में पिसने वाला एक मजदूर नबीना शख्स हमारे साथ मौजूद है। आइए इनके पास चलते हैं, ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि कितना बिल आया आपको? हमको 8,709 रुपये बिल आया है। हम बहुत गरीब है, कोई सहारा नहीं, यार दोस्त खर्चा दिन दिन मैं अपने घर के अखराजात चलाता हूँ, मेरे पास इतनी वक़्त नहीं है। वो 2000 की दवाई जेरी 15 दिन दी आती है, वह मैं पूरी करा कि बिल पूरी करा। सदर पाकिस्तान को अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपील करता हूँ को खुदा दा खौफ करें, फिरौन ना बने। और वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, उसको भी अपील करता हूँ इधर जुल्म गरीबों पर ना डहे, खुदा दा खौफ करें, मत आप कोई खुदा दा गज़ब को टूट जाए। तर्स करें, मैं माजूर आदमी आखा तू माजूर हाँ, मेरे को कोई और सहारा कोई नहीं, ना किसी दे अगे हाथ फैलेंदा, अल्लाह दे सहारे तो बैठा हुआ हूँ। जी आपने मजदूर आदमी की बात सुनी है। हुकूमत वक़्त से इसने अपील की है कि मेरी जो आमदन है उससे तो मेरे घर का जो खाने पीने का निज़ाम है वो बड़ी मुश्किल से चलता है, और मुखियर हज़रात से मदद की अपील भी की है इन्होंने। और जो वक़्त के फ़ैरौन बने बैठे हैं, ये इतनी महंगाई जिनकी वजह से है, उनको कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें, वरना जैसे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और ये हाफ़िज़ कुरान भी है, उसकी ये अपील भी है हुकूमत वक़्त से भी और वक़्त के फ़ैरौनों से भी कि खुदारा बाज आ जाएँ। ये ना हो कि जैसे कि पूरा मुल्क बाहर निकला, उसके साथ साथ ये मजदूर, ये गरीब जो नाबीना लोग हैं, इनकी बदुआएं आपको ले डूबें। जी कबीरवाला में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा और ज़्यादा टैक्सेस पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली बिल जला दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला के नवाही इलाका सरदारपुर चौपटा गिरदोनवा में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और ज़्यादा टैक्स के खिलाफ शहरी और ताजर बिरादरी सड़कों पर निकल आए। वापडा सब डिवीज़न सरदारपुर सराय सद्दू कबीरवाला के सामने मकामी सैकड़ों शहरियों और ताजरों ने एहतजाजी रैली निकालते हुए वापडा महकपुर और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। एहतजाज के दौरान कई मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया। इस मौके पर ताजरों और अवाम का कहना था कि एक तरफ मुल्क में महंगाई अरूज पर है तो दूसरी तरफ वापडा की तरफ से बिजली के बिलों में हज़ारों रुपए का इजाफा करके अवाम की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। सदर अंजमन ताजरान शबीर चांद और दीगर ने कहा कि अवाम इन हालात में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे और ज़्यादा टैक्सेस बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखती, इसलिए इनमें कमी की जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली के बिलों में होने वाले इजाफे और ज़्यादा टैक्सेस को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए सहाफ़ी हजरात मार आसिफ नुनारी, इमरान शाहिद और दीगर ने कहा कि आवाम के पास ज़्यादा बिल जमा करने के पैसे नहीं हैं, जबकि बाज़ लोग बिल्स अदा करने के लिए घरेलू अशिया फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा हुकूमत इन पर रहम करे और बिजली पर ज़ायद टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद अमीर रमज़ा सऊ। मंचनाबाद में भी बिजली पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा से। जी तफसीलात बताइएगा। भर की तरह मिंचनाबाद में आज जो हुकूमत ने जालिमाना टैक्स लगाया गया है गरीब आवाम पर, इस वक्त गरीब आवाम सड़कों पर निकल आई है। एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। एहतजाजी रैली लारी अड्डे से होती हुई अल्लाह अकबर चौक तक इख्तिताम पसीन हुई। इस वक्त हमारे साथ जिला प्रेस क्लब के चेयरमैन हाजी गुलाम रसूल भट्टी साहब मौजूद है। मजीद उनसे जान के उनका कहना सबसे पहले अपने वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट इसको रहने दें, गरीब को रिलीफ दें। जो
जो इनका जालमाना टैक्स को बंद करें और गरीब की बात सुनें। और उसके बाद मैं अपने पास फौज आर्मी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पर कंट्रोल करें, जो जालमाना टैक्स है ये गरीबों का बंद कराएं और गरीब को अपनी रोटी खाने दें, अपने 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 बच्चों को उनका पेट पाल लें। जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, इनका यही कहना है कि जब तक जालमाना टैक्स से माफ़ नहीं किए जाएंगे हम रोडों पर एहतजाज करते रहेंगे। जी पाक पतन में भी बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाक पतन से। एहतजाज में मौजूद हैं अयूब चावला। जी अयूब चावला, बताइएगा। मुल्क भर की तरह पाक पतन में भी बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जो है ताजर सड़कों पर निकला है। मरकजी अंजुमन ताजरान चौधरी अजहर महमूद की क़यादत में बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है, जो कि बिजली चौक से नगीना चौक तक निकाली जाएगी। हुकूमत और वाडा के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है और आवाम में शदीद गम गुस्से की लहर नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त सदर मरकजी अंजुमन ताजरान चौधरी अजहर साहब मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं कि हमें क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम और ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। ये जो इतने बिल हमारे लोगों को आ रहे हैं वो गरीब आदमी नहीं दे सके, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप इनसे बाज आ जाएं और लोगों ने अपनी बालियां, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल बेच दिए हैं। ऐसा ना हो तो आपके गिलेबानों पर हाथ पहुंच जाए। आप वक्त से पहले जल्दी से जल्दी इन बिलों को कंट्रोल करें, वरना आज तो रैली निकाली है, इसके बाद पूरा शहर बंद होगा। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि अगर ये टैक्सेस वगैरह वापस ना लिए गए तो एहतजाज का दायराकार जो है वसी किया जाएगा। जी भवाना में बिजली की कीमत में इजाफे और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त पर काश्तकार, ताजिर और शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रोमाना से। जी मोहम्मद अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह भवाना में भी बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ अड्डा जामिया पार्क पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ताजिर, काश्तकार और शहरी जो है हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमारे साथ किसान रहनुमा सनाउल्लाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आपने जो आज ये एहतजाजी मुजाहरा किस हवाले से? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਬਹਿਸ ਤੇ एहतजाज कर रहे हैं। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ 500-400 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40,000-50,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਰੀਆ ਦਾ 3100-3200 ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 4200-4300 ਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੱਪ ਕੇ ਥੱਕ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਏਸੀ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ एहतजाज ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਸਾਂ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ घसीट के बाहर ले उसाएंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं बिजली और खाद की जो बढ़ती हुई कीमतें इनको कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी लंदन में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ लंदन के शहर के वासी भी बाहर निकल आए हैं। मजीद देखते हैं लंदन से हाकिम अली बोदला की इस रिपोर्ट में। महंगाई के सताए शहरियों ने बिजली बिलों और बेजा टैक्सेस पर काम छोड़ दिया और एहतजाज में शामिल हो गए। शहरियों का कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह हमारे लंदन भी आज महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम। जैसा कि पूरा मुल्क मुतासर है, आए रोज़ खुदकशियाँ हो रही हैं। हुक्मरानों को ज़रा होश के नाखन लेने चाहिए कि ये अपने अवाम के बारे में सोचें। हमारे मुल्क का हाल अब ये बन चुका है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हमारे मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। हम तो दुआ करते हैं कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के बिजली के बिलों में जो भी हमारे साथ जुल्म ढाए जा रहे हैं किसी आवाम की बर्दाश्त में नहीं है। हम में इतनी सकत नहीं है कि हम इतने बड़े टैक्सेस और ये सब कुछ अदा करें। हमारा पाकिस्तान इत्तेहाद किसान था तो पहले भी ट्यूबवेल के बिलों में पहले भी रो रहा था। अब जबकि जो घरेलू बिल हैं वे ये भी आवाम की बर्दाश्त से बाहर हैं। हम ये बिल हरगिज़ अदा करने के लिए तैयार नहीं है जब तक ये सारे टैक्सेस वगैरह नहीं निकालेंगे। हम बिल्कुल मुतहिद हैं और इकट्ठे रहेंगे और बिल देने के लिए तैयार नहीं है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा किसी से मुतालबा नहीं है, मेरा और गरीब आवाम का आर्मी चीफ से मुतालबा है।
یہ جو حکومت ہے یہ سب نیل ہیں، ایک نیل پہلے پڑا ہے اور دوسرے نیل باہر آ گئے، وہ بھی نیل ہیں، سب چور ہیں یہ آرمی چیف. اور جب بھی مارشاء اللہ لگا ہے ہم غریب خوشحال ہوئے ہیں. تو یہ آرمی چیف سے میری ریکویسٹ ہے، میرا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے، میڈیا کوشش کرے، وہ جو یہ حکومت فوج خود سنبھال لے، پھر ہم خوشحال ہو گئے. باقی یہ سیاسی سب چور ہیں، ہمیں کسی سیاسی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ حکومت پہلے والے بھی چور تھے، اب والا بھی جو انہوں نے بٹھایا یہ بھی چور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور غریب کو سکھ کا سانس لینے دے. جی جتوئی کے علاقے شہر سلطان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ میپکو کی جانب سے بجلی کے زائد بل آنے پر شہری بلبلا اٹھے ہیں. جتوئی کے علاقے شہر سلطان میں شدید احتجاج کیا گیا. شہریوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. شہریوں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. ریلی کے شرکا نے بجلی کے بل جلا دیے. میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ حکومت وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اتنی مہنگائی ہے کہ بجلی کے بل بھرنا ممکن نہیں ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے. لیا میں اب تک منشیات فروشوں کے خلاف 46 مقدمات درج کر کے 46 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. منشیات فروشوں کے ملزمان کے قبضے سے ہیروئن 11 چرس شراب برآمد ہوئی ہے. ڈی پی او لیا اسد الرحمان کا کہنا ہے کہ منشیات کے ناصور کے خاتمے کے لیے لیا پولیس کی طرف سے بلا تفریق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کو قانون کے کھٹیرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. آئی جی پنجاب کی منشیات کے خلاف خصوصی مہم کو کامیاب بنا کر منشیات سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے. شہرنامے کا سلسلہ جاری. حاضرت بریک کے بعد دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو رحیم یار خان سے، جہاں پر پنجاب پولیس کے سابق ڈی ایس پی خالد مسعود بھٹی کے خلاف بستی کرم آباد کے علاقے کے مکینوں نے احتجاج کیا. مظاہرین نے خالد مسعود بھٹی کے خلاف نعرے بازی کی. رحیم یار خان میں پنجاب پولیس کے سابق ڈی ایس پی کے ظلم و جبر اور ناجائز قبضے کے متاثرہ نواحی علاقے کرم آباد، بستی بسا اور عبداللہ پور کے محنت کش مکین سراپے احتجاج بن گئے. مظاہرین نے کہا کہ خالد مسعود بھٹی جب پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر تھا تو اس عہدے کا فائدہ اٹھا کر علاقے کے مزدور کسان طبقے پر تشدد، لوٹ مار، گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتا تھا. بچوں اور خواتین پر تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ زمینوں پر قبضہ پولیس کی مدد سے کرتا تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے ظلم و جبر کو مزید بڑھا دیا ہے. کیرول پکا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں اضافے سے 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اونچے درجے کی بے رحم لہروں نے تباہی مچا دی ہے. فصلیں موزوں لہروں کی نظر ہو گئی ہیں. 15 دیہات سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں. متاثرین کھلے آسمان تلے بے آسرا بیٹھنے پر مجبور ہیں، جبکہ انتظامیہ سے امدادی کارروائیوں کی اپیل کی گئی ہے. فیروز والا صوفی صوب کوٹ عبد المالک میں منشیات فروشوں کی اندھادھند فائرنگ سے صدر شاہدرہ پریس کلب سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. منشیات فروشوں قمر، سہیل، اسد اور بلال کی نشاندہی کرنا جرم بن گیا. صوفی صوب بازار کوٹ عبد المالک کے منشیات فروشوں کی سرعام اندھادھند فائرنگ سے صدر شاہدرہ پریس کلب تنویر جٹ سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. دوسرے 2 زخمیوں کی شناخت زاہد اور ندیم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں منشیات فروشی کا دھندا دھڑلے سے جاری ہے. پولیس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے. پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے. تمام صحافی برادری نے آزادی صحافت پر حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. صحافی برادری نے شدید مذمت کرتے ہوئے آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں منشیات فروشوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو ملک بھر میں پرامن احتجاج کیا جائے گا. شہید کانسٹیبل انضمام الحق کی نماز جنازہ پولیس لائنز سیال کوٹ میں ادا کر دی گئی ہے. ڈی پی او محمد حسن اقبال، ڈپٹی کمشنر عدنان محمود، اعلیٰ فوجی اور پولیس افسران، وکلا اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی ہے. شہید کے جسد خاکی کو پورے اعزاز کے ساتھ پولیس لائنز لایا گیا. راستے میں شہریوں نے فرض کے خاطر جان قربان کرنے والے شیر جوان کا شایع نشان استقبال کیا. چوراہوں اور شاہراہوں پر شہید کے قافلے پر بھرپور گل پاشی کی گئی.
DPO, DC और फौजी आला अफसरान ने शहीद के जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और जबकि पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि पुलिस के बहादुर सपूत इंज़मामुल हक़ की कुर्बानी रायगा नहीं जाने दी जाएगी। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। समंदरी में अवाम की जान और माल को मुहाफ़िज़ इदारे का कांस्टेबल अवाम की जान का दुश्मन बन गया है। कांस्टेबल वक़ास ने अपने भाई की हमरा पुरानी रंजिश की बिना पर दिन दिहाड़े फायरिंग कर दी और तमाम तर वाक़े की फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। समंदरी में गुंडागर्दी और लाक़ानूनियत की इंतहा हो गई है। समंदरी के रिहायशी वक़ास कांस्टेबल ने अपने भाई के हमरा और वर्दी के अंदर धौंस में पुरानी रंजिश की बिना पर निजी पेट्रोल पंप पर दिन दिहाड़े फायरिंग की और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस कांस्टेबल वक़ास किस तरह बिना खौफ और ख़तर फायरिंग कर रहा है। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास की फ़िज़ा कायम है। बढ़ती हुई महंगाई से जहां दूसरी अशिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं किराने की तमाम अशिया की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बताइएगा, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किराना शॉप पर। जो किराने की आइटम्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जैसे चीनी है, दालें हैं, घी है, इसी तरह जो चावल हैं उनके रेट्स जो हैं ये गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हुकूमत वक्त जो है वो ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है। मेरे साथ किराना एसोसिएशन के सदर नादर असलम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया असलान, आपने हमें मौका दिया कि आम आवाम की जो आवाज़ है हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि अपना गरीब आदमी जो है वो तो बिल्कुल ही पिस चुका है, उसके साथ साथ जो अपना शॉपकीपर हैं किराने के वो भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसा कि अब देख लें कि चीनी जो है वो अपना 5 माह में जो है उसका रेट जो है वो डबल हो चुका है और घी का जो है वो भी अब ये 2-3 दिन के अंदर अंदर 400 रुपये कार्टन बढ़ गया है। उसके साथ गंदम देख लें, गंदम जो है वो 3000 रुपये अपना बोरी पे जो है उसका रेट बढ़ गया है। मेरे ख्याल में तो अब आम आदमी के साथ साथ जो दुकानदार है उसकी भी जो है क़ुव्वत ख़रीद जो है उनसे बाहर हो चुकी है। हमारा हुकाम बाला से यही मुतालबा है कि इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, जैसा कि आपने किराना एसोसिएशन के सदर की बात सुनी है कि इस वक्त सिर्फ आवाम परेशान नहीं है, जो ताजर हैं, बिलखसूस जो साहिब सरवत लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। इस वक्त जो है चीज़ को ख़रीदना उनके लिए जो है वबाल जान बनता जा रहा है। हुकूमत वक्त से अपील है निगरान हुकूमत से कि खुदा के लिए जो है अपने जो मामलात को हल करके इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि आवाम का जो जीना वो महाल ना हो। उनको क़ुव्वत ख़रीद तो दे दें ताकि वो आसानी से चीज़ें ख़रीद सकें। जी, खानेवाल में महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम दूध की अफादियत का हफ्ता मनाया गया, जिसमें आगाही फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम खानेवाल में भी माँ के दूध की अफादियत के बारे में आगाही दी गई है। मिस्टर मौजूदा डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर, इनसे जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, माँ के दूध की अफादियत के बारे में आपने जो हफ्ता और रोज़ आगाही की दी है, क्या कर जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि आलमी हफ्ता पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये ग्लोबल कैंपेन है जो कि 1992 में शुरू हुई थी और फिर 2016 में इसको सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन कर दिया गया था। ये सिर्फ हमारे एक मुल्क पाकिस्तान या सूबा पंजाब में नहीं है, पूरी दुनिया में इन्हीं तारीखों में 28 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और इस साल इसकी थीम ये है कि वर्किंग वुमेन जो हैं उनके लिए कैसे सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें वो अपने बच्चों को फीड करा सकें और वो साथ में अपने काम को भी जारी रख सकें। एक रिसर्च से पता चला है कि तकरीबन आधे बिलियन औरतें जब मैटरनिटी लीव के बाद जाती हैं तो उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो नॉन सपोर्टिव होता है, जिसमें उन्हें वर्क और अपने बच्चे के बीच में चूज़ करना पड़ता है कि मैं काम को तवज्जो दूं या बच्चे को तवज्जो दूं। तो इस साल ये वीक मनाने में हमने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी माएँ या औरतें मैटरनिटी लीव के बाद आती हैं उनको वर्क रिलेटेड सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, डे केयर सेंटर्स हो उनके, जिसमें वो विदाउट एनी स्ट्रेस अपने बच्चे को भी टाइम दे सकें और अपने काम को भी टाइम दे सकें। जी मैडम, ये बताइएगा ये कितने माह से लेके माँ और कितने साल के बच्चे को माँ दूध अपना पिला सकती है? जी, पैदाइश के फ़ौरन बाद आधे घंटे के अंदर से लेकर
अगर 6 माह तक तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी ना पिलाएं। जैसे अक्सर रिवाज होता है कि घुट्टी देते हैं किसी चीज़ों की, वो भी सबसे अच्छी घुट्टी माँ का दूध ही है। सबसे पहला जो ब्रेस्ट मिल्क आता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और वो पिलाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 6 माह के बाद से 2 साल तक बच्चे को थोड़ी थोड़ी ठोस ग़िज़ा शुरू करानी चाहिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ वर्कर्स होती हैं, स्कूल एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स होती हैं और BHUs RHCs लेवल पे लेडी हेल्थ वर्कर्स LHVs और मिडवाइफ होती हैं, जो कि ये अवेयरनेस देती हैं कि बच्चे को कौन सी ठोस ग़िज़ा किस उम्र में शुरू करानी है। जी बिल्कुल, डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर का ये कहना था कि खाने वाल की माओ को ये मैसेज दिया जाता है कि वो जो है वो ये दूध वाले डब्बे जो दूध पिलाते हैं ये बिल्कुल ना पिलाए, माँ अपना दूध पिलाए, बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे और बच्चे की सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। जी और यहाँ पर आपको बताएंगे फातिमा कत्ल केस में डिस्पेंसर को भी नामजद कर लिया गया है, जबकि डिस्पेंसर इम्तियाज़ को मुलज़िम पीर असद शाह को सहूलत फराहम करने के जुर्म में नामजद किया गया है। फातिमा कत्ल केस में नामजद मुलज़मान की तादाद 4 हो गई है। मुलज़िम पीर असद शाह के ड्राइवर एजाज पर भी मुलज़मान की सहूलतकारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ड्राइवर एजाज को पुलिस ने कराची से गिरफ्तार कर लिया। सहूलतकार मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। खानखा डोगरा से आपको खबर देंगे, जहां पर खानखा डोगरा के सबसे बड़े KPL क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस शुरू हो गए हैं, जबकि खानखा डोगरा में क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए एक दफ़ा फिर KPL टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इलाके भर से मारूफ प्लेयर्स अपना बेहतरीन खेल पेश करने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। नवाब 11 के ऑनर खुरम शहजाद जूनियर ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें चेयरमैन सरदार कामरान डोगर, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात मुस्लिम लीग काफ मियाँ हमजा करामत डोगर, चौधरी शफीक अहमद जट ने खिलाड़ियों में क्रिकेट किट्स और क्रिकेट बैट तकसीम किए। जहलम के गवर्नमेंट अलबनात स्कूल में 4वीं क्लास के तालबा मुज़िर सेहत अशिया खाने से जाँ बहक हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया समेत महकमा हेल्थ और महकमा एजुकेशन ने अफसरान के मामले को दबाने की कोशिशें जारी हैं। बच्ची ने स्कूल की कैंटीन से निम्को खाई थी। अचानक उसकी हालत ख़राब हुई तो रेस्क्यू ने इत्तला पर पहुंचकर बच्ची को तिम्बी इमदाद फराहम की, लेकिन बच्ची जान बर ना हो सकी। तलबा की लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत महकमा एजुकेशन और हेल्थ के अफसरान भी अस्पताल पहुंच गए। मीडिया से रब्ता करने पर डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम महकमा ने वाक़े से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते हुए मामले को दबाने की कोशिश की। महंगाई से तंग शहरियों ने खानेवाल लक्कड़ मंडी रोड ब्लॉक करके एहतजाज करके शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद जानते खानेवाल में मौजूद अपने नुमाइंदे सलाउद्दीन मिर्जा से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर में बिजली की महंगाई के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा है। जहाँ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है तो वहीं एशिया खुरोनोश में इजाफा किया जा रहा है। खानेवाल में मुतअद्दिद जगह पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी किया है। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते बताइएगा क्या मुतालबा है आपका? हमारे हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है, कुछ ज़्यादा मुतालबा नहीं है कि जो बिजली में बेसहाशा इजाफा किया गया है वो बिजली के रेट कम किए जाएँ और जो अफसरान बाला को बिजली फ्री दी जा रही है 17वें ग्रेड से लेकर 21वें ग्रेड तक उनकी बिजली के उनसे बिल वसूल किए जाएँ। और दूसरी हम ये चाहते हैं 200-300 यूनिट पे जितने में ज़ालिमाना टैक्स हैं ये ख़त्म किए जाएँ ताकि लोग आसानी ज़िंदगी गुजार सकें। या खुदकशी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लोगों को बच्चों स्कूलों से हटा लिए गए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी आमदनी कम है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं। हम बच्चों को रोटी खिलाएं, बच्चों को कलम में हाथ दें, किताबें दें या घर बिठाएं, उनको क्या करें? हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है, हम मुबे वतन पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान, हम दिफा करेंगे पाकिस्तान का। बड़े बड़े लोग पाकिस्तान से भाग जाते हैं, ये गरीब आवाम ही पाकिस्तान का दिफा करेगी, यही फौज के शाना बशाना इंशाल्लाह दिफा करेगी।
बताइए, बिजली की महंगाई कर दी गई हुकूमत की जान से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी निगरान हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो जुल्माना बिल टैक्स लगाए गए हैं गरीब आवाम पे, ये अपने टैक्स वापसी लिए जाएं। और पहले ही हम तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई के तले आए हैं। साबका हुकूमतों ने भी गरीब आवाम का जीना दुभर किया है, खुदकुशियों पे मजबूर किया जा रहा है। अब ये इजाफी टैक्स लगाने से रोज़गार तो हमारा वैसे ही कम है, अब ये हम बिजली के बिल कैसे भरें? अगर हमारे जायज़ मुतालबात ना मानेंगे तो हम इंशाल्लाह सिविल नाफरमानी करेंगे। हम निगरान हुकूमत से और जनरल आसिम मनीर साहब से मुतालबा करते हैं ये टैक्स जो लगाए गए हैं ये फिल फॉर वापसी लिए जाए, वरना हम सिविल नाफरमानी करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, एहतजाज कर रहे हैं बिजली की महंगाई के खिलाफ और हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि फिल फॉर जो बिजली की रेट्स में जो कमी लाएं, मजीद जो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। जी, जंग में अक़लियती बिरादरी के मसाइल की तरजीह हाल के लिए मिसाक सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन व इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए काम करेगा। इस पर मज़ीद तफसीलात इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। अक़लियती बिरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए IG पंजाब की हिदायत पर DPO जंग ने मिसाक सेंटर का इफ्तिताह किया। मिसाक सेंटर में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान को तैनात किया गया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO जंग का कहना था कि ना सिर्फ इस्लाम में इस चीज़ की हदायत है, बल्कि आर्टिकल 5 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर भी अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उसके बारे में बातचीत है कि खिदमत मराकज़ की जो सहूलियात हैं वो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्पेशल इस जगह पे वो बैठ के तमाम सहूलियात जो आपको पुलिस खिदमत मरकज़ से मिलेंगी, मसलन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके टेनेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन है, जनरल पुलिस के लिए यहाँ पे हमने स्पेशली उनको शुरू कर दिया है। अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदगान की जानिब से पुलिस के इस इक़दाम को सराहा गया। मिसाक सेंटर कायम हुआ है, इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी, हमारे माहौल में अमन पैदा होगा और मैं सिख कम्यूनिटी की जानिब से इस कदम को एक अहसन कदम जो है करार देता हूँ। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की यकसा ज़मानत देता है। CPO मुल्तान मंसूर उल हक राना ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान उमर जहांगीर के हमरा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले एशिया कप के इफ्तिताही मैच की सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में स्टेडियम और रूट का विजिट किया है। SSP ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद इमरान ने CPO मुल्तान मंसूर उल हक राना को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। रूट्स, होटल्स और स्टेडियम के अंदर बाहर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि रूट्स और स्टेडियम के गिरदोनवा में JTT और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। CPO मुल्तान ने हिदायत की कि मैच के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए, ख़वातीन, बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद की मदद की जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद जहांगीर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। क्रिकेट स्टेडियम और रूट्स पर लाइटिंग और सफाई सुथराई के इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शायकीन के लिए खुसूसी तौर पर शटल सर्विस और पार्किंग का इंतजाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि टिकट्स की फरोख्त और चेकिंग के मैकेनिज्म की कड़ी निगरानी की जाएगी। आरिफवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। तहसील में 4 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ़ार ने खाद महंगे दामों बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। मुख्तलिफ मुकदमात पर छापे मार कर 4 खाद डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां आमिर गफ़ार का कहना था कि ज़राअत रेट्स पर खाद सेल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुनाफाखोर खाद डीलर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरनामे का सिलसिला जारी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़। और शहरनामे के सिलसिले में बात करेंगे उमरकोट से, जहां पर अद्वियात साज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इसकी तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में अद्वियात साज कंपनियों ने अपनी जादारी कायम करते हुए अद्वियात की कीमतों में चंद रोज के दौरान 150 से 200% इजाफा कर दिया, जिसके बायस महंगाई के सताए हुए शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कितनी मालियत की दवाई लें या खाना लें या जीना करें, अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया मरीज है। ये तक कि आप मेहरबानी बराए करम दवाएं कम करें, बहुत दवाएं बढ़ गई हैं। वो बहुत इतने तक के पहले जो 20 रुपए के
चीज़ मिलती थी वो अभी 40 रुपए की मिलती है। इनकी कीमत कम करो, मेहरबानी बराए करम। हमारी गुजारिश है कि जो कुछ करो दवाई कम करो। स्टोर मालकान का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारी सेल में भी कमी हुई है और कंपनियों की जानिब से मार्जिन कम करने की वजह से हमारे कारोबार में भी मनफी असर पड़ रहा है। और हम इतना परेशान हैं कि हमारी जो सेलें 1.5 से 2 लाख रुपए थी वो अभी सेलें आ रही है लाख से 1.25 लाख रुपए और 80,000 तक भी पहुंच चुकी है। हम जो है अपना खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे तो दूसरों को हम कैसे जो है सपोर्ट करें। लाइटों का बिल है और हमारी मुलाजिमों की तनख्वाहें हैं, सारा सिस्टम है। हम जो है हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो महंगाई का बोरान बम है ये जो है आवाम से मेहरबानी करके हटाया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। अद्वियात साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल मसूनियात और बिजली की कीमतों में कमी के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ वकास खान, यूसुफजई, मेट्रो न्यूज़ मरकोट। हारूनाबाद में खातून ने सोए हुए शख्स पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब से असलम नामी शख्स का चेहरा, आंखें और जिस्म बुरी तरह से झुलस गया है। हारूनाबाद के नवाही गांव में आबिदा नामी खातून ने गली में सोए हुए असलम नामी शख्स पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब से असलम का चेहरा, आंखें और जिस्म बुरी तरह से झुलस गया है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक होने पर बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बेटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन भी कच्चे में अमन कायम न कर सका। कच्चे के डाकू मुल्क भर से लोगों को अगवा करके भारी तावान तलब करने लगे हैं। मजीद जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन भी कच्चे में अमन कायम न कर सका। कच्चे के इलाके में हनी ट्रैप की वारदातों में एक बार फिर इजाफा। डाकू मुल्क भर से लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा करके कच्चे बुलवाने लगे। मंजनाबाद के रिहायशी नौजवान को नौकरी का झांसा देकर कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। वर्षा का कहना है कि डाकू मगवी की रिहाई के लिए 40 लाख तावान मांग रहे हैं। तावान की रकम जल्द ना देने पर डाकू जान से मार देने की धमकियां भी दे रहे हैं। घर में खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, तावान की रकम कहां से देंगे। जबकि तर्जमान पुलिस का कहना है कि पंजाब की हदूद में हनी ट्रैप का कोई ठिकाना मौजूद नहीं है। सिंध के कच्चे डाकू लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा कर रहे हैं। दिहाड़ी करता हूँ, 65 साल उम्र है हमारी, तो जो घर का सर्किट भी नहीं चला सकता हूँ। मेहरबानी फरमाई जाए कि बच्चे को वापस कराया जाए। वर्षा का मजीद कहना है कि लड़के को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कैमरामैन मुनीब के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। और यहाँ पर आपको खबर देंगे जहानिया से। जहानिया के एडिशनल सेशन जज जहानिया मोहम्मद अफजल मचका ने मनशियात फरोश मुलजिम को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी है। जबकि मुलजिम से पुलिस खाता जहानिया से तकरीबन 1.5 साल कबल मनशियात बरामद कर ली थी और मुकदमा दर्ज किया था। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। मोहम्मद अल्ताफ़ वल्द शौकत अली तकरीबन 1.5 साल कबल कार में मनशियात लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस थाना जहानिया ने परवेज़ वाला के करीब नाका लगाकर पकड़ा, जिसके कब्जे से तकरीबन 24 किलो चर्स बरामद हुई थी। सज़ा का हुक्म आने पर शहरियों और वकला ने मौज़िज़ अदालत के इस फैसले को सराहा और कहा कि मनशियात फरोशों को उम्र कैद की सज़ा मिलने पर मनशियात फरोशों के लिए एक सबक है। इससे मनशियात फरोशी का खात्मा होगा। टंडू मोहम्मद खान के रिहायशी मजदूरों के बेटे को राइस मिल्स के मालिक ने अगवा करने के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला है। जहां पर टंडू मोहम्मद खान के इलाके अय्यूब कंडारा स्टॉप के रिहायशी गरीब मजदूर अमरशी ठाकुर ने अपने बेटे अशोक कुमार के मासूम बच्चों के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल कुमार कोहिस्तानी और सुरेश कुमार ने मेरे बेटे अशोक कुमार को ज़बरदस्ती अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। जबकि साबिक IG सिंध AD ख्वाजा के इशारों पर मेरे बेटे के खिलाफ थाने में झूठी FIR दर्ज की गई। मुझ पर और मेरे बेटे पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है जो झूठा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि राहुल कुमार कोहिस्तानी और सुरेश कुमार कोहिस्तानी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ हमारे साथ इंसाफ किया जाए।
जामशोरों में सरवरी जमात के चेयरमैन मखदूब सैदुज़्ज़मा आतिफ ने कहा है कि ओहदेदारान अपने इलाके में सरवरी जमात के लोगों से मिलकर उनके मसाइल के हल के लिए साथ साथ एक दूसरे से सियासी और समाजी तौर पर भी बातचीत करें, जबकि जमात के ओहदेदारान और रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरवरी जमात के करोड़ों कारकुनान, मुरीद, अक़ीदतमंद व हमदर्द मौजूद हैं। जमात का मकसद हर एक को यकसा तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रोज़गार, सेहत और दीगर मौक़े फराहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम में वोट की अहमियत और वोट डालने के सही तरीक़ाकार से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाएगी ताकि अगले इलेक्शन में सरवरी तंजीम के मसाइल हल करने वाले शख्स को वोट दिया जा सके। साहिवाल प्रेस क्लब के सदर राना जावेद निसार की तरफ से DPO साहिवाल फैसल शहजाद के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद अकील इशफाक प्रेस क्लब के अहदेदारान, चेयरमैन अशरफ, सीनियर नायब सदर मियाँ वसीम रियाज, नायब सदर नवीद गनी, जॉइंट सेक्रेटरी मिर्ज़ा खालिद नदीम, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी शाहिद रफ़ीक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सलीम काठिया, पुलिस अफसरान, PS2 DPO राना आसिफ सरवर, इंचार्ज CRO ब्रांच दाऊद इकराम, SHO सिटी ज़ीशान इकराम, SHO फतह शेर उमर तराज और SHO गला मंडी AD शाहीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO फैसल शहजाद ने आला कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में शील्ड्स भी तकसीम की। शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।